जिस तरह से हम लोग एक्चुअली कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, हम लोग जो काम कर रहे होते हैं, हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर्स काम कर रहे होते हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में और हमारे एम्प्लॉइज काम कर रहे होते हैं, दे आर नॉट वर्किंग फॉर द ट्रेनिंग ऑफ यूनिवर्सिटी। तो आप लोग यूनिवर्सिटी में जो पढ़ रहे होते हैं वो आप लोग को आपकी पकड़ने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जो आपकी यूनिवर्सिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और उसके बाद वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप एक्चुअली को देखिए बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, यू नीड टू कम आउट विद समथिंग न्यू। अभी हम लोग सारी चीज़ें वही पुरानी चीज़ें कर रहे होते हैं, उसके बाद आप जाके इंडस्ट्री में आते हैं, तो हम लोग अगर हम ट्रेन कर रहे होते हैं, आपको 6 महीने लगा रहे होते हैं, आप जैसे ही ज्वाइन करते हैं कंपनी को, आपका रिज्यूमे अपडेट करते हैं और स्टार्ट सेंडिंग टू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। आप लोग 5 कंपनी के स्टूडेंट यहाँ पे 2,000 रुपये की जॉब छोड़ रहे हो। हम लोग अगर ट्रेन कर रहे हैं किसी को 6 महीने 1 साल, तो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कम से कम हमारे से 3 से 4 साल में अगर हम ट्रेन करते हैं और आप लोग मूव आउट करते रहेंगे तो हम लोग उसकी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, और क्योंकि हम लोग कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, कि हमारा ब्रेड एंड बटर हमारे बिजनेस से, ठीक है। एक कम आउट है यूनिवर्सिटी में आगे ट्रेनिंग देना शुरू कर दी, पूरा कॉल हम लोग सस्टेन नहीं कर सकते वहाँ। The question that I asked still remains. Do you think that universities or students are even interested in working with you? Chahe free ho, chahe paid ho. Have you had that kind of experience? Well, to be fair, there's no, you can't just give an answer and just get the, you just, sort of broad, generalization to नहीं कर सकते. So, I don't want to get into the mode of generalizing the students' interesting thing. जो इंटरेस्टेड है उनको पता है, वो इंटरेस्टेड है अपने प्रोफेशन में, अपने करियर्स में, अपने आज में और अपने फ्यूचर में। तो इस तरह की भी जाहिर बात है हमारे मुल्क में देयर मस्ट बी अपना क्या बोलते हैं थाउजेंड्स ऑफ वेरी वेरी सीरियस यंगस्टर्स एंड देयर माइट बी नॉट सीरियस प्लेयर्स आल्सो। सो ऑफ कोर्स हमारी कंपनी में वो लोग बैठे हुए हैं हु आर सीरियस। सो आई गेस दैट्स द आंसर। So a question to the students. How do you show that you are committed or dedicated to a company? Or to your own To your own career path. to your own career. To your own You future. don't need to be dedicated to a company. How do you demonstrate that? How do you do it? The question is, how do you demonstrate your commitment to yourself as a professional, or how do you demonstrate your commitment to a company? And for example, you go to USUSA's company, you go to Nokia, or you go to corporates and you say कि जी मैं आपके साथ काम करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ. How do you prove to them that you are committed to work here? As an individual, I would like to fulfill my goals. What are my goals? I would like to approach towards them. And for the company, I would like to achieve my company's goal. Whatever I'm asked to do, I will definitely try my best. Boring answer. Something which you are asked to do, I would rather like to do something out of the box. I believe in the abilities और उनसे अपनी abilities से use करते हुए I do something that will make me prominent. All right, मतलब मैं ऐसी I'm just being a little bit interactive. That's all. I don't need to discourage it. One from this. सारी लड़कियाँ बोल गई हैं भाई शर्म करो करके. देखें आप सबने जो आंसर्स दिए हैं ना, those are, let's say for me, those are अपना post employment कि अब आपकी जॉब लग गई, you want to be innovative, you want to do something out of the box, और जो उन्होंने कहा, you have to convince me that you are worth it to be part of my organization, right? So this is all pre-employment. Pre-employment, what I am looking for, or what I believe that the world is looking for. Forget about me. This is a global world. You could be on a phone interview and probably interviewing with Merck Sharp and Dohme out of USA or some major oil company, anywhere in the world. So what I am looking for is a student कि वो जिस फील्ड में जॉब ढूंढ रहा है, जिस फील्ड में उसने अपनी प्रोफेशन बनाई है, जैसे वो हेल्थ केयर है, वो फाइनेंस है, वो ऑयल एंड गैस है, वो मीडिया है. I want to see that the student takes his domain, which is that area, that sector, or that sector to him should be, I guess मैं उसको अगर वैसे ले जाऊँ तो should be his Bollywood or should be his or her अपना Hollywood. कि ये this is what I am interested in. All the players in that sector are the stars. So अगर वो oil and gas है तो Exxon could be the Shah Rukh Khan and Shell could be the Robert De Niro of that industry. They should be knowing the
players and the stars in that industry. They should know how that industry has evolved across history. इसमें जो बड़े players हैं वो बड़े बने किस तरह, क्या-क्या mergers हुए, क्या-क्या acquisition हुए. You should be following. You should know your domain. अगर वो healthcare है, अगर वो education है, अगर वो कोई social area है, you should be so passionate about it. And you should be animated about it. You should know that industry inside out. Like I said, जिस तरह एक youngster जो है वो एक rock star को follow करता है, या वो entertainment world को follow करता है. एक professional, एक MBA, एक IT का मतलब अपनी domain के अंदर उसको उतना ही excited और passionate होना चाहिए. और उसके जो leaders हैं, उसके जो key managers हैं, उसके जो दुनिया में जो उस sector में जो movers and shakers हैं, they should know them, like we know the stars. उनकी gossip, वो कहाँ गए, किस कंपनी से किस कंपनी में आए, किस तरह इवॉल्व की, डिज्नी का CEO कैसे बना, all of that. You should know your industry इतनी ज़्यादा comprehensively and passionately for you to then be able to sit in front of an interview or even get the chance of an interview in a truly global opportunity and then convince them that you're it. There's no youngster out there who knows that industry as much as you. That's what I mean. Right. Can I just butt in before Shweta says anything? Just ask you two questions. One is, how many here are in the field of business, studying business? Yeah, good job, how? Who does that? You already figured out the right. Okay, hands down. How many of you are IT? Despite the fact that you are studying business or IT, in दोनों disciplines के अलावा तो आपको ये कुछ पढ़ रहा है, right? So there are different facets within business or different specializations within IT. Tell me what, in the next 10 years or the next 5 years, अगर पाकिस्तान रहा इंशाल्लाह, what segment, what kind of a business do you see yourself in? Do you see yourself in a software house, in a hospital? Do you see yourself in an ad agency? Just yell it out. I'll be 8 minutes. How do you yell it out? So, what's it? Yeah. Telecommunications company. Telecommunications company. Investment bank. Investment bank. Marketing? Agencies, marketing? FMCG. FMCG. Hotel. Huh? Hotel. 7-star hotel in Pakistan. Definitely कुछ हो ही जाएगा. Teaching. I love her. She's going to be a teacher. Anyone else? Media. Anyone else in the back? Electric utilities. Electrics or electric utilities. Okay. Tuitions. Tuitions. Anis Hussain the second. There's going to be Anis Hussain the second. Okay. So and I need one more. Speaker. A motivational speaker. Airlines? Okay. Now, my question to the panelists is this. It's a very diverse range. What should they be thinking? Now they're studying either business or they're studying technology. How should they approach making a career in the airline industry? Or how should they make an approach to set up their own company and become a motivational speaker? How can they take all of these passions that they have and turn them into profitable ventures? Africa today is a new age of business. If they want to do something, how can we as the industry ensure that they do so? Can you just, bada random so that it's live inshallah. But with a business background or with an IT background and with all these desires and interests, how can the industry, or what word of advice, what piece of advice would you give to them? How should they approach their careers? मुझे ये पूछना है कि आप लोग कौन से सेमेस्टर फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं? First, second, third, last, fourth, so throughout. Across. How many of you are from last year? Final year semesters. Final year. Final semesters. फाइनल सेमेस्टर में आप लोगों के प्रोजेक्ट्स कौन कौन से? मुझे 2-3 बता दें. Research related project. कौन सा है? किस पे रिसर्च कर रहे हो? अभी we tried to do a research on let's say with research on our course now. So I tried to do that, or if you want to
किसी और से भी आपने पूछा था? Japanese team. Final year students only. Nabil final year. Final year students. आज weight loss तो हो ही जाएगा आगे I have the selective advertising and that we have to come up with an ad of a particular product. Then we have to redesign the whole ad and choose the ad is not going to be an next product. So that's what we're doing. Which year is selected? So yeah, we have to come up with a big idea, campaign ideas. Was the president involved in this startup shoot thing? अच्छा मुझे IT का कभी final year student नहीं आता. IT final year students? No. अच्छा final year projects में हम लोग जो research कर रहे हैं, mostly जो आप लोग कह रहे हैं वो पे कर रहे हैं या आपको बात है तो और multinational company. ठीक है, not a single इग्लू में क्यों नहीं कर रहे आप लोग? Why Oman only? Huh? It's a local company. It's a big, one of the biggest company Anglo. Why not Igloo? मैं छोटी कंपनी की बात कर रहा हूँ. किसी बड़े की कंपनी. He asked a question. क्योंकि हम लोग लास्ट में जितने लोग मिले थे वो उनका मोस्टली जो काम करना चाह रहे थे तो मल्टीनेशनल में करना चाह रहे थे या एफएमसीजी में करना चाह रहे थे इसलिए मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे रेज किया कि आप लोग क्योंकि हम लोग यही बोल रहे थे पाकिस्तान यहाँ से एडजस्ट नहीं करेगा ठीक है या 3-4 साल बाद और हम लोगों ने काम की मल्टीनेशनल के साथ करना कि अगर आप लोकल के साथ काम नहीं करेंगे और लोकल कंपनीज ग्रो नहीं करेंगे तो पाकिस्तान इस तरह से नहीं करेगा यू हैव टू कीप फेथ ऑन योर कंट्री जब तक कंट्री फेथ नहीं होगा तो हम आगे नहीं बढ़ सकते तब बैक टू कि आप लोग जो क्वेश्चन था राबिया का कि किस तरह से बेंचमार्क कर सकते हैं आपको हमारी इंडस्ट्री में राइट बहुत क्वेश्चन ही बोलिए Given very diverse interests, like what advice would you give to them? For example, she wants to get into airlines. How should they pursue that dream? After we bring budget, the budget, how should they pursue it? ठीक है उसके लिए आप अपनी रिसर्च जिस तरह से लोग कर रहे हैं you have to come up with some research और उसके कुछ न्यू आइडिया के साथ आप लोग हमारे पास आए या आप किसी इंडस्ट्री को आप लोग चूज कर रहे हैं कुछ न्यू आइडिया के साथ हैं देयर आर कंपनीज हु आर वर्किंग फॉर 100 years उनका उनकी जो टोटल वर्थ है नेट वर्थ इज 5 billion और 6 billion एंड दे आर ग्रोफॉर्म लाइक ओल्ड कंपनी उसकी नेट वर्थ इज लाइक 36 billion उसकी जो अगर आप टोटल डिफरेंस देखें इट्स लाइक 95 to 96 इज नो डिफरेंस There's difference है लेकिन उसके जो net worth है more than 5 billion क्योंकि उसका एक न्यू आइडिया के साथ लोग हैं you guys come up with some new idea जब आप न्यू आइडियाज के साथ आएंगे तो कंपनी से जब तक बेनिफिट नहीं होगा और हमेशा ऐसे लोगों को बेनिफिट हायर करेंगे जिससे कंपनी को बेनिफिट एक्चुअली सर क्वेश्चन मुझे आप ये बताइए कि आप लोग बोले कि क्रिएटिव और न्यू आइडियाज के साथ आता है तो आप मुझे ये बताएं आप लोग कुछ मतलब पहले उनको और कोई ऐसी अट्रैक्टिव ऑफर्स या कोई प्रमोशन और इस तरह मतलब कुछ अट्रैक्शन तो रखो कि वो मतलब आपकी तरफ अपने किस किस्म की अट्रैक्शन होनी चाहिए सर हम लोग बाहर क्यों जाते हैं आप मुझे बताएं लोगों का इसी वजह से क्योंकि रिकग्निशन मॉनेटरी मतलब मॉनेटरी है मतलब जो भी आपका पैसे से आपको वो अट्रैक्ट करें बेसिकली रिकग्निशन आपका है आपको जॉब सिक्योरिटी तो ये बेसिक कुछ फैक्टर्स है जिससे एक नॉर्मल बैचलर स्टूडेंट अगर उसके दिमाग में कोई इनोवेटिव आइडिया है तो वो आगे आएगा और वो खुद कोशिश करेगा कि आपको अप्रोच करें लेकिन अगर आप लोगों की साइड पे आपने एक कह दिया उसके बाद तो वो तो ये समझेंगे ना कि यार जस्ट सेफ ऑफ कि ये लोग यहाँ पे बैठे हैं इसलिए उन्होंने बोल दिया तो क्या कहते हैं वो तो नहीं इसका अट्रैक्ट क्यों बाहर जा रहे कोई रीज़न होगा ना कोई तो रीज़न होगा कि हम लोग बाहर जा रहे हैं हमें अपने मुल्क से मोहब्बत बिल्कुल है लेकिन हम लोग बाहर जाते हैं क्यों क्योंकि हमें वहाँ पे ज़्यादा बेटर तरीके से वो अपनी जो ऑफरिंग्स है उनको ज़्यादा बेटर तरीके से वो प्रमोट करते हैं देखिए बाहर की कंपनी स्टार्ट बाहर आपको ज़्यादा जॉब अवेलेबल है
तो वहाँ पे लोग जो ग्रेजुएट हो रहे हैं वो लोग जाके जॉब नहीं कर रहे सर, वो अपनी कंपनीज भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो जब वो अपनी कंपनी स्टार्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली जॉब क्रिएट होती है मार्केट में। इस तरह से जब आप लोग ग्रेजुएट कर रहे हैं, व्हाई यू आर ओनली लुकिंग फॉर जॉब्स ओनली, आप अपनी कंपनी भी स्टार्ट नहीं करना चाहते? फाइनेंशियल इश्यूज देखिए, आपके पास कोई आइडिया होगा कैशलेस प्रोग्राम, सही है। उसमें था कि इनोवेटिव कोई भी मतलब एक टीम होगी जिससे मतलब और नाम कराची 9 टीम और 10 टीम विल बी सिलेक्टेड एंड क्या कहते हैं उनको मेंटोर करना चाहेगा उनके आइडिया को और उनको फिर कंपनी स्टार्ट। कराची जितनी बड़ी पॉपुलेशन है, जितने लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं, आप समझते हैं कि 10 टीम ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ 5 पीपल वुड बी इनफ? डू यू थिंक दैट? स्टार्ट विद और समथिंग। दूसरी बात Microsoft के साथ एक्चुअली तो Microsoft का नहीं, Microsoft के साथ I guess you know we sort of digress a little bit. आपने कहा कि हम लोग बाहर चले जाएंगे या बाहर जाते हैं, हम लोग जाए बाहर, जिसको बाहर अपॉर्चुनिटी मिलती है, इट्स ग्रेट थिंग, तो टेक इट इन हार्ट। पहले जब मैं शुरू में जितने लोग बैठे हैं, दे वांट टू गो एंड बिकम इंटरनेशनल एम्प्लॉई, वंडरफुल। उसके अंदर भी पाकिस्तान के लिए तो अपना विन विन है, उसमें कोई नेगेटिव बात नहीं कि अगर आप मतलब ये इन वे सॉर्ट ऑफ अपना थ्रेड आपने इंडस्ट्री की तरफ थी कि हम बाहर चले जाएंगे या हम बाहर चले जाएंगे, तो ऐसे क्या इट इज यू नो, मैं तो इसको अपना नेगेटिवली बिल्कुल नहीं है। आई लव टू सी ऑल ऑफ आवर यंगस्टर्स, बट अगेन गोइंग कमिंग बैक टू द टॉपिक जो हमारा है, उसमें वही है कि आप कह रहे हैं कि इंडस्ट्री आपके लिए कुछ करे या इनफ नहीं कर रही। भाई इट्स अ लेसन दैट विल if you haven't learned by now, you learn the hard way. कोई आपके लिए you know, I mean, in reality कुछ करता नहीं, आप ही को जो करना है वो अपने लिए करो। और I am being very blunt about it, you know, although हम यहाँ बैठे हैं, ये भी एक किस्म का हम अपने 2 घंटे निकाल कर और आपके साथ अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। बट इसके अंदर you know, I don't want to take any, मतलब तो मैं आपके ऊपर फेवर नहीं कर रहा है। अगेन आपके लिए किसी ने कुछ नहीं करना, जो थोड़ा बहुत अगर कोई रास्ते में मिल जाता है हम जैसा, और 2 टिप्स यू नो फॉर गुड और बैड आपको दे देते हैं, इसको भी जेब में रखें। मेहनत आप ही ने करनी है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। मेरा आपसे यही वो है, डोंट कोई क्या करता है जेब में आज नॉट फॉर द कंट्री के लोग आज को टिकट रिपोर्ट करना है, आप ही ने करना है जो करना है। और आप यंग हैं और आप एक एज कम्पेयर टू मी एक बहुत एक अपना डायनामिक एज में यंग हुई है, जहाँ दुनिया की इंफॉर्मेशन आपके फिंगरटिप्स में होते हैं। दिस इज अ ट्रेमेंडस एडवांटेज। इसके बाद भी अगर आप कह रहे हैं कि कोई मेरे लिए कुछ करे और यू नो तब मैं आगे बढ़ूंगा, तो आई थिंक यू आर डूइंग योरसेल्फ सॉर्ट ऑफ मिस्टेक। All right, we have maybe 5 or 7 minutes. We're going to take these last 2 questions, and then we're going to go towards the wrap up. But just kind of carry on, because I do that in my wrap up. I just wanted to ask जो भी लोग अपनी कंपनी द्वारा कर रहे हैं और जॉब क्रिएट हो रही है, लेकिन इसके पाकिस्तान के अंदर अगर मैं चाहूँ कि अपनी कोई ऑर्गेनाइजेशन खोलूँ, सबसे बड़ी चीज़ जो फेस की जा रही है यहाँ पर वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, जो कि यहाँ पे नहीं है। ठीक है ना, पोलिटिकल रीजन की वजह से जब तक स्टेबिलिटी नहीं है, अगर मैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन खोलना चाहता हूँ तो 5 to 10 years का प्लान बनाऊँगा। यहाँ पे जब तक स्टेबिलिटी नहीं है तो मैं कैसे फोन आउट करूँगा कि 5 to 10 years के बाद जो मेरा बिजनेस वहाँ तक ग्रो करेगा, वहाँ से पॉसिबल। जबकि हमें स्टेबिलिटी नहीं हो सकती है, स्टेबल नहीं हो सकती, तो ना प्रोजेक्शन हो सकते हैं, ना ही ऑपरेशन हो सकता है, तो इतना बाहर अबाउट की तरफ ही बाहर अगर आप इस तरह से बात कर रहे हैं ग्लोब में, पाकिस्तान को काफ़ी डिपेंड करता है, लेकिन बाहर भी अगर आप देखिए जो रिसेशन ने हिट किया है, क्योंकि जो कंपनीज है वो इस किस्म की कंपनीज में जो तो बंद हुई है कंपनीज वहाँ, वो तो 100 years 200 years ओल्ड कंपनीज थी, वही बंद हुई है। रिसेशन ने पूरा ग्लोबली हिट किया, सिर्फ पाकिस्तान को हिट नहीं किया। जो लोग जो इशूज़ पाकिस्तान में और ग्लोबली काफ़ी जगह पर फेस कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या हुआ कि वो लोग वहाँ पे पॉलिटिकल प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ इकोनॉमिकल रिसेशन है। हमारे थोड़ा सा पॉलिटिकल रिसेशन ज़्यादा है इंस्टेड ऑफ इकोनॉमिकल रिसेशन। ठीक है, तो इसको हमने ओवरकम इस तरह से करना है कि हम कम अज़ कम जो कुछ कर सकते हैं
इनफैक्ट जिस तरह से मैं आपकी IT बिजनेस मेरा काम है, हम लोग जो डेवलपमेंट कर रहे होते हैं जिस तरह से कर रहे हैं तो उसके लिए हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं होती। यू कैन डेवलप समथिंग फ्रॉम योर ओन होम, ठीक है? आपके सर्वर्स आपके होते हैं, आप वहाँ पर रखें और आप घर से काम करें। जरूरी नहीं कि आप रोड का आपने जाना जरूरी है उस दिन या आप ऑफिस जाएँ, आप घर से भी हमारे जिस तरह मेरे ऑर्गेनाइजेशन लोग काम कर रहे हैं उन सबके पास अपने घर पे इंटरनेट अवेलेबल है और उनके पास कंप्यूटर्स हैं, वो लोग हमारे सर्वर से कनेक्ट होते हैं और घर से काम कर रहे होते हैं। सर अगर आपके हालात ख़राब है तो घर से भी काम कर सकते हैं। अब आप होम ऑफिस डेवलप करें, इंस्टेड ऑफ आप बिल्डिंग्स में जाए, आप कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट में जाए काम करें, यू डेवलप योर ओन होम ऑफिस। ठीक है, अभी मेरे साथ पास बैठे हैं किसी भी कॉर्पोरेट से ही, तो इनका एक छोटा कज़न है, वो ओमान में होती है, उसने भी क्या स्टार्ट किया वहाँ पे, उसने हैंडमेड टी शर्ट स्टार्ट कर दी है। वो वहाँ पे स्कॉटलैंड से ऑर्डर ले रहा है, पाकिस्तान टी शर्ट्स लेता है, वहाँ पे हैंडमेड प्रिंट करता है, उससे सोल्ड आउट कर रहा है, वो तकरीबन $100 की टी शर्ट सेल कर रहा है। वो IT इंडस्ट्री नहीं है, लेकिन वो ऑर्डर फेसबुक के थ्रू ले रहा है, इंटरनेट थ्रू उसने वेबसाइट बनाई हुई है, और इस तरह से ऑर्डर डिलीवर कर रहा है। उसने कोई मिल नहीं लगाई है अपनी, वो पाकिस्तानी, और इसी तरह से आप लोग भी पाकिस्तान में इस तरह काम कर सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट कि आप करना क्या चाहते हैं, आपको खुद करना पड़ेगा, कोई आएगा नहीं आपके पास। What happens naturally, industries team up with the students of universities to make their projects. ठीक है ना? अब पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता. You are asking us say how many projects we have and how many projects we don't have, or are we working on? कैंपस कनेक्शन में भी हुआ था कि बंदा गेम ऑफ फ्रेंड आज से भाई होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट आते हैं, वो कहते हैं कि होटल मैनेजमेंट में हमारे पास प्रोजेक्ट है और हॉस्पिटल मैनेजमेंट प्रोजेक्ट है, आप नहीं कहा था एग्जैक्टली। तो अब आर यू गाइस टीमिंग अप विद द स्टूडेंट्स, और हमारे पास इतने कॉन्फिडेंस नहीं होते कि हम कोई बड़ा प्रोजेक्ट करें, लाइक सर्वर्स का हम सिक्योरिटी सर्वर का सिक्योरिटी डिप्लॉय करें, एनहांसमेंट करें। सर्वर बनाने के लिए तो मुझे तो पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा ना, माइक्रोसॉफ्ट ओपन सोर्स सब कुछ अवेलेबल है, ओपन सोर्स का अवेलेबल, लेकिन इफ आई एम गोइंग टू वर्क ऑन माइक्रोसॉफ्ट सर्वर, उसके लिए मुझे तो विंडोज सर्वर चाहिए होगी, वो ओपन सोर्स में अवेलेबल नहीं है, दैट्स नॉट ओपन सोर्स। तो उसके लिए why aren't you guys invoking the students from the university कि आप लोग प्रोजेक्ट करें, these are the projects, हम लोग चाहते हैं कि आप वहाँ से टीम अप करें, why aren't you doing this? And I'll be very frank with you कि अगर मैं IT के हवाले से बात करूँ तो रिसेंटली अभी एक अपना टॉपिक था, इसी तरह IT CEO आपस में बात कर रहे हैं फोरम पर, और टॉपिक यही था कि जो ग्रेजुएट्स हैं वो इतने एम्प्लॉयबल नहीं है, और वो इसलिए नहीं है कि उनको फिनिशिंग कोर्सेज हैं। फिनिशिंग कोर्सेज क्या है कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो इंडस्ट्री के अंदर ग्लोबली बज़वर्ड्स हैं, इस तरह अपना क्या बोलते हैं मोबाइल एप्लीकेशन का इम्पोर्टेंट, उनके ऊपर उनके पास ट्रेनिंग है। ये IT CEOs की कॉन्वर्सेशन अभी लास्ट वीक हो गया। I went back to my अपना project managers, the youngsters that have worked with me for the last 8-10 years, who now I trust to write my technology, and I showed them this forum और उसकी conversation. उनका perspective बिल्कुल different था। मैंने बोला कि नहीं, हमें finishing जो अपना courses है वो fine, that's just another एक dynamic से market की ज़रूरत नहीं है। What we need is graduates who have really dedicated the 4 years of computer science education, और जो वाकई अपनी फील्ड में और अपना प्रोफेशन या अपने करिकुलम को बहुत अच्छी तरह और बहुत एक्सीलेंट तरीके से वो समझें। You give us any fantastic computer science graduate, we'll be able to have him work on any technology in the world, given 1 to 2 months. और यही मेरी कंपनी में हम करते आए हैं। We built our company on fresh graduates for the last 10 years, और वही फ्रेश ग्रेजुएट जो मैंने 2001 में हायर किया था, वो आज ग्लोबली मिक्सिंग का CEO। तो हमारा फॉर्मूला ये था कि फ्रेश ग्रेजुएट अगर उसने अपने 4 साल वाकई टाइम ज़ाया नहीं किया अपनी और अपनी एक्सपर्टीज को वो ट्रूली समझता है, उसके बाद उसको दुनिया में किसी टेक्नोलॉजी किसी डोमेन में आप काम करवा सकते हैं। उसका रैप अप टाइम जो है वो बहुत शॉर्ट है। So that's something I just want to share with you. I'm not interested in your project. I'm not interested in आप मेरे साथ क्या काम करेंगे as an intern while you are graduating. All I'm interested in वो इंटरव्यू में और मेरे टेस्ट में 15 मिनट में सामने आ सकता है कि आपने अपने 4 साल जो है ना वो वाकई बहुत सीरियसली और सब्सटेंस से हल कर। I've been given an ultimatum to wrap up
by 3:45, which is in 2 minutes. So I'm going to make one quick announcement. I have one question, and then we're going to have some wrap-up comments. It's about the panelists will be available. If you guys don't have classes, you're more than welcome to interact with them. The announcement is that I've got 2 or 3 people from CIO magazine who are collecting your feedback forms. For those of you who have filled in your feedback forms, give the form to Shafaq or Saurabh, or I think even Aslan in the back. Aslan, stand up. Stand up. Wave your arms, Maggie. Arms. Good. They'll give you a giveaway, and please be so that we can interact with you. For the panelists, I need to have Rabia do one announcement as to what's going to happen with the students here. I have one comment, and then we're going to have very, very brief remarks from the panelists, so that we can wrap up in the next 2 or 3 minutes. इसके अलावा there's another एक किसी student ने कहा था कि आप यहाँ से panelists तो आप लोग चले जाएंगे, उसके बाद क्या होगा? इसके बाद your young man here will be responsible for connecting you with each of these panelists. There's something we do known as the mentor nashtas. A lot of students have complained that they don't know what the work environment is like. These people have to treat you to a nashta or khana, even pizza will do, even one kebab will do. But they have to invite you, for those of you who are interested, they have to invite you into their office, and they have to mentor you for a minimum of 2 hours. That's that commitment. आपको अगर यूसुफ साहब उसके बाद नहीं पसंद आए, which is impossible, then you can say कि भाई मैंने कोशिश की थी, at least मेरा 1.5 घंटा यहाँ जाया नहीं हुआ, और मुझे 2 घंटे के बाद खाने को भी मिल गया. So that's what you do. So that you are responsible for. And if CPM doesn't show up, then I will come and I'll work on it. So think about your wrap-up comments, and I have a quick comment for you. हमारे पास किस तरह से इंडस्ट्रियल अप्रोच करती है, इंडस्ट्री कैसे अप्रोच करती है, मैं आपको ये बताऊँ. लेट्स से अभी अगर वेट कर रहा है, वेट से आपने प्रोड्यूस कर लिया, आप उसके डायनेमिक्स कैसे डिजाइन करते हैं, आप उस पर काफ़ी बड़ी फंडिंग है. इस तरह से कई चीज़ें ऐसी हैं, बुक राइटिंग के सेक्टिंग लाइक बुक होते हैं, एक बुक राइटिंग करने से अगर वो है तो आइडिया रिगार्डिंग प्रोजेक्ट इसमें काम करना पाकिस्तान में रहते भी कर सकते हैं और अब्रॉड भी जा सकते हैं. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप काम आता है आपको बेसिकली यू कैन गेट मनी फ्रॉम एवरीवेयर. Wait, can I have a quick wrap-up comment from you? Rabia, in your wrap-up, if you can just say what's in it. Thank you. My colleague Lava. Advice for the students, again, come up with some new ideas. Ideas के साथ आएं और instead of लोगों का वेट करें, वो आपकी तरफ आएं, आप लोगों की तरफ जाएं, with your new ideas उनको बोलें कि मैंने ये चीज़ develop किया और मैं आपके लिए काम कर सकता हूँ. Let's do partnership. The partnership, Rabia? Have any particular advice rather like a students are asking for like I already just go through wherever they are and faculty they are included, they can bring 10 shuffle empty form. So we have the registration form on behalf of Nokia, and then we'll give this to CDM. 1 faculty and 10 IT students or 10 students who are interested in being trained on Nokia platforms will be able to do so. This has to be a serious commitment because they will monitor what kind of activity. So that's what we're doing. Your work has to be your hobby. Simple as that. It has to be your pet. You want to have as much fun with your work as you have with your hobby and your pet. That's the only way you stand. You are these people are also here in the same heat, in the same environment as you are. Please give them a big round of applause.
Mr. Shoaib Nizami. And Ms. Ravi.